بہت زمانہ پہلے ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام نوران سلطنت تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ سلیمان شاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف اور بھلائی کی بات کرتا تھا۔ مگر بادشاہ کی حکومت میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دل سے بہت ظالم اور لالچی تھا۔ وہ تھا وزیر زاہد خان۔ وزیر زاہد خان بظاہر بادشاہ کا وفادار نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دولت اور طاقت کا بھوکا تھا۔ وہ اکثر عوام سے بھاری ٹیکس وصول کرتا اور اس کا بڑا حصہ اپنے خفیہ خزانے میں جمع کر لیتا۔ غریب کسان اور مزدور اس کے ظلم سے بہت پریشان تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ تک شکایت پہنچا سکے۔ اسی سلطنت کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک بہادر، ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر اس کے والد نے ہمیشہ اسے سچائی اور انصاف کا درس دیا تھا۔ حمزہ کے والد کہا کرتے تھے، بیٹا، طاقت کا اصل مقصد کمزور کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اس پر ظلم کرنا۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے۔ حمزہ نہ صرف جنگ میں بہادر تھا بلکہ لوگوں کے ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اگر کسی غریب کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی تنخواہ میں سے بھی حصہ دے دیتا تھا۔ ایک دن حمزہ گاؤں کی طرف گشت پر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک بوڑھے کسان کو مار رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، میں نے ٹیکس ادا کر دیا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ حمزہ فوراً آگے بڑھا۔ رکو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سپاہی رک گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ حمزہ نے غصے سے کہا، میں شاہی فوج کا سپاہی ہوں، کو مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم وزیر زاہد خان کے حکم پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اس بوڑھے نے پورا ٹیکس نہیں دیا۔ بوڑھا کسان روتے ہوئے بولا، میں نے سب کچھ دے دیا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ حمزہ کو اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے کو چھوڑ دے۔ کچھ بحث کے بعد سپاہی وہاں سے چلے گئے۔ بوڑھے کسان نے حمزہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر تم نہ آتے تو شاید وہ مجھے مار ہی دیتے۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، بابا فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن حمزہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ قدم اس کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کرنے والا ہے۔ اسی شام وزیر زاہد خان کو خبر ملی کہ ایک سپاہی نے اس کے آدمیوں کو ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ وزیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کون ہے وہ سپاہی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ایک درباری نے جواب دیا، اس کا نام حمزہ ہے۔ وزیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا، تو ایک عام سپاہی مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ وزیر زاہد خان کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اس کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگلے دن دربار لگا۔ حمزہ کو دربار میں بلایا گیا۔ حمزہ بادشاہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ تم نے وزیر کے سپاہیوں کو روکا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ حمزہ نے سر جھکا کر جواب دیا، جی حضور، میں نے ایک بے گناہ بوڑھے کو بچایا تھا۔ وزیر فوراً بول اٹھا، یہ سپاہی نظم و ضبط توڑ رہا ہے۔ اگر ہر سپاہی اپنے فیصلے کرنے لگے تو سلطنت کا نظام خراب ہو جائے گا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے حمزہ سے پوچھا، کیا واقعی اس بوڑھے نے ٹیکس ادا کر دیا تھا؟ حمزہ نے مضبوط آواز میں کہا، جی حضور، میرے سامنے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وزیر نے فوراً جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، رعایا ہمیشہ بہانے بناتی ہے۔ حمزہ نے پہلی بار وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو اس معاملے کی تحقیق کر لی جائے۔ وزیر کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، مگر بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کی تحقیق کروائیں گے۔ وزیر کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اگر تحقیق ہوئی تو اس کے ظلم کا راز کھل سکتا تھا۔ اسی رات وزیر نے اپنے خفیہ آدمیوں کو بلایا۔
उसने आहिस्ता आवाज में कहा, यह सिपाही हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे रास्ते से हटाना जरूरी है। इसके आदमियों ने सर हिलाया। इधर हमजा को अंदाजा नहीं था कि इसके खिलाफ साजिश शुरू हो चुकी है। अगले चंद दिनों में हमजा को कई अजीब वाकयात का सामना हुआ। कभी इस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता, कभी इसे मुश्किल ड्यूटी दी जाती, मगर वो खामोशी से अपना फर्ज अदा करता रहा। एक रात जब हमजा किले के बाहर पहरा दे रहा था तो एक अजनबी शख्स उसके पास आया। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, सिपाही अपनी जान बचाना चाहते हो तो होशियार रहो। हमजा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? अजनबी ने कहा, वजीर तुम्हें खत्म करना चाहता है। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। हमजा हैरान रह गया। उसे समझ आ गई कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, मगर उसने दिल में फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। इसी दौरान सल्तनत में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे कि वजीर के खुफिया खजाने हैं जहां रियाया से लूटा हुआ माल छुपाया जाता है। अगर ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती तो वजीर की ताकत खत्म हो सकती थी, और हमजा वो वाहिद शख्स था जो इस राज तक पहुंचने के करीब था। मगर वजीर ने भी अपना आखिरी वार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमजा को अंदाजा नहीं था कि अगली रात इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान होने वाला है, और इसी इम्तिहान में फैसला होना था कि सच्चाई जीतेगी या जुल्म। बहुत सी रातें गुजर गईं, मगर हमजा के दिल में इस अजनबी की बात गूंजती रही। वजीर की साजिश वाकई शुरू हो चुकी थी, मगर हमजा ने फैसला कर लिया था कि वो सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। अगली रात हमजा को किले के पिछले हिस्से में पहरा देने की ड्यूटी मिली। ये जगह आमतौर पर सुनसान रहती थी, मगर इस रात हमजा ने देखा कि कुछ लोग खामोशी से अंधेरे में चल रहे हैं। वो सब सियाह कपड़ों में थे और बहुत एहतियात से किले के पुराने दरवाजे की तरफ जा रहे थे। हमजा को शक हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। कुछ फासले पर जाकर उसने देखा कि वो लोग जमीन के अंदर जाने वाली एक खुफिया सुरंग का दरवाजा खोल रहे हैं। हमजा को यकीन हो गया कि यहाँ कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जब वो लोग अंदर चले गए तो हमजा भी खामोशी से सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। सुरंग बहुत लंबी और तारीक थी। दीवारों पर मशालें जल रही थी। कुछ देर बाद सुरंग एक बड़े कमरे में जाकर खत्म हुई। वहां का मंजर देखकर हमजा हैरान रह गया। कमरे में सोने के सिक्के, कीमती जेवरात और दौलत के ढेर लगे हुए थे। यह सब वो दौलत थी जो रियाया से जुल्म के जरिए छीनी गई थी। हमजा को समझ आ गया कि ये वजीर जाहिद खान का खुफिया खजाना है। इसी वक्त उसे आवाजें सुनाई दी। वजीर जाहिद खान खुद वहां मौजूद था। वो अपने आदमियों से कह रहा था, जल्दी करो, कल बादशाह ने टैक्स के बारे में तहकीक का हुक्म दिया है। अगर राज खुल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये खजाना रातों रात दूसरी जगह मुंतकिल करना होगा। हमजा ने सब कुछ सुन लिया। अब उसे यकीन हो गया कि वजीर वाकई जालिम और गद्दार है। मगर अचानक एक सिपाही की नजर हमजा पर पड़ गई। वो चीख कर बोला, यहाँ एक आदमी है। फौरन सब लोग हमजा की तरफ दौड़ पड़े। हमजा ने तलवार निकाल ली और बहादुरी से मुकाबला करने लगा। वो एक एक करके कई सिपाहियों को पीछे हटाता रहा, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर जाहिद खान हमजा के सामने आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी। उसने कहा, मुझे मालूम था कि तुम ही हो जो मेरे रास्ते में आ रहे हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमजा ने मजबूत आवाज में कहा, जुल्म हमेशा ज्यादा देर नहीं चलता। एक दिन सच जरूर सामने आता है। वजीर हंस पड़ा। उसने कहा, अफसोस तुम वो दिन नहीं देख सकोगे। कल सुबह दरबार में तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा और तुम्हें सजा दे दी जाएगी। फिर किसी को भी मेरे राज का पता नहीं चलेगा। अगली सुबह दरबार लगा। पूरे महल में खबर फैल चुकी थी कि एक सिपाही पर गद्दारी का इल्जाम है। हमजा को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। बादशाह सुलेमान शाह तख्त पर बैठा था। वजीर जाहिद खान भी पास खड़ा था। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हजूर, ये सिपाही सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहा था। ये रात को खुफिया सुरंग में घुस आया था और खजाना चोरी करने की कोशिश कर रहा था। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह ने हमजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो?
हमजा ने पुरसकून आवाज में कहा, हजूर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने खजाना चोरी करने की नहीं बल्कि एक बड़े जुल्म का राज जानने की कोशिश की थी। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन सा राज? हमजा ने कहा, हुजूर, इस सुरंग में राया से लूटी हुई दौलत छुपाई गई है और वो खजाना वजीर जाहिद खान का है। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर फौरन गुस्से से बोला, ये सब झूठ है। ये सिपाही अपनी जान बचाने के लिए कहानी बना रहा है। मगर इसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुले और चंद किसान अंदर आए। उनके साथ वही बूढ़ा किसान भी था जिसे हमजा ने बचाया था। उस बूढ़े ने कहा, हुजूर, हम गवाही देने आए हैं। वजीर के सिपाही हमसे जुल्म के साथ टैक्स लेते हैं और जो नहीं दे सकता उसे मारते हैं, फिर वो सारा माल कहीं छुपा देते हैं। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया, सुरंग की तलाशी ली जाए। कुछ देर बाद शाही सिपाही वापस आए। उन्होंने आकर कहा, हुजूर, सुरंग में वाकई बेशुमार खजाना मौजूद है और वो सब टैक्स के नाम पर लिया गया माल है। अब दरबार में सबकी नजरें वजीर पर थीं। वजीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। उसने कहा, जाहिद खान, तुमने हमारी राया पर जुल्म किया और सल्तनत से गद्दारी भी की। ऐसी खयानत की सजा सख्त होगी। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाहियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। वजीर चीखता रहा मगर अब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। फिर बादशाह ने हमजा की तरफ देखा और कहा, तुमने सच्चाई और बहादुरी का सबूत दिया है। अगर तुम खामोश रहते तो शायद ये जुल्म कभी सामने ना आता। इसलिए आज से तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि शाही मुहाफिजों के सरदार हो। हमजा ने आजिज़ी से सर झुका लिया। दरबार में मौजूद लोग खुशी से नारे लगाने लगे। उस दिन के बाद सल्तनत में इंसाफ का निजाम मजबूत हो गया। राया खुशहाल होने लगी और लोग हमजा को एक नेक दिल और बहादुर इंसान के तौर पर याद करने लगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है मगर आखिरकार कामयाबी इसी की होती है।